अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार। आप देख रहे हैं केएम न्यूज़ डिजिटल, सच्ची खबरें सेठी बात के साथ। लाइए आज की ताज़ा और अहम खबरें, हर अपडेट सबसे पहले आप तक। बेंगलुरु में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कारोबारियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक खास प्लेटफॉर्म मुलाकात कारोबार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नए बिजनेस आइडियाज़, एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान राब्ता बढ़ाना और कारोबारी तरक्की के लिए नए मौके पैदा करना है। MIA एसोसिएशन 2004 से मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी को एक साथ लाने और उनकी रहनुमाई करने का काम कर रही है। ऐसे प्रोग्राम से नौजवान को रहनुमाई मिलती है और बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। ये देखते हैं आज के खास न्यूज़ अपडेट्स की पूरी रिपोर्ट। He was also served as a joint treasurer for 1 year. This term they both served as 1 year and 1 year for Azmat Bhai. Thank you for all your contribution. So, आप right now. Secretary for this term, as we needed the most of his knowledge and his guidance. Now I would request our new council to join towards the dais. I'll call out the names. Please join. हमारे क्लब को सुनको सिमत साहब मेरे कंपटीशन में बोलने के लिए तुम्हें कुछ मालूम नहीं है ऐसा हमेशा ही क्या मैं क्लब कर दी सो एक मैं लास्ट वीक कर लिया कुछ मालूम नहीं शायद इंटरव्यू वाज कनेक्टेड इंटरव्यू से क्लब का लास्ट क्या मैं करती थी ये फीलिंग का बात है बात करने की फन में वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मीर अब्दुल हफीज़ अभी इंशाल्लाह 26-28 के टर्म में मैं सेक्रेटरी रहूँगा इसका MIA का। तो जैसे कि हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब बताए, तो वी आर बाइंग अ प्रॉपर्टी हियर इन HBR layout in 4060. Here we are coming up with an entrepreneurs hub. So it will be a street plus 4 levels, and each level will have some activity other to happen. In the first level, we will be setting up an incubation center
where we will be guiding the people with idea, from idea to either proof of concept or minimum viable product or a prototype. So we'll be incubating them. We'll be incubating the startups. And the second level, we will have institutional tie-up, where we will have tie up with the institutions like engineering colleges and all that, and we'll invite their students and give them internship. We'll give them training on how to become entrepreneurs and internship on that. And one more level, we will have a complete networking for all our members, and also we will be displaying their products in one level. And on the fourth level, we will be having a state-of-the-art conference hall, which can be utilized by other corporates also, and our own members can utilize it on some nominal payment. So this will help them grow their businesses, conduct their training programs for their employees. And this is the overall, we want to create a entrepreneurs hub there. In that, it's not just a property, we are creating a entrepreneurs hub there. And we will also have a help desk where anybody comes in and asks for guidance on either enterprise or on industry. We can definitely help them through that help desk. There's a lot of youngsters who are planning to start a business, but just because of lacking of capital or investments, Yes. they're just pushing it back. Yes. Because it comes of idea. So, have you thought anything to bring this entrepreneurs, young entrepreneurs, and Absolutely. See, there's a myth that the entrepreneurs have got an idea, and if just they get capital, they can run their enterprise, or they can become a successful entrepreneur. This is a myth. See, there are some set functions of a business to set up: marketing, sales, operations, R&D, accounts, finance. So when a person comes to us, we first evaluate them about their idea. Then we put them across to the domain experts. And see, most of the time what happens is any idea that comes in, domain specific is only 30%. 70% is generic. So we try to evaluate their idea and then help them grow. We also, one another part of the last activity is, exposing them to the finance. Finance is not the first, access for them. So we train them through how to get that finance. So only if they qualify, they can get the finance. So we help them train that. मुस्लिम एंटरप्रेन्योर, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन एक एंटरप्रेन्योर्स का एसोसिएशन है। हम लोग एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं। आज की डेट में हम लोग करीबन 726 लोग इंडस्ट्री प्लस एंटरप्रेन्योर्स मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स। आज की हमारी रीच है, हम लोग दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, नासिक, बेंगलोर, टुमकुर, बेंगलगाम, ये सब ऑलरेडी हम लोग फैले हुए हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद है कि हम लोग हमारे कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप एक मेजर एक्टिविटी की तरह लाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं और यंगस्टर्स जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो एक मेजर मकसद रहेगा कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करें। अभी एंटरप्रेन्योर जनरेट करने के, जैसे कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भाई स्टार्टअप एक जरिया है, ओके, बट बहुत सारे आदमियों के पास उनकी बेसिक लाइवलीहुड की भी उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। तो MIA एज ए विंग, तो हम लोगों ने एक लाइवलीहुड प्रोग्राम भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके इसमें जो भी गरीब तबके के यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी BCom या एक बेसिक डिग्री SSLC या कुछ भी और मेहनत पढ़ने का जज्बा रखते हैं, उनको हम लोग हैंड होल्ड करके लॉन्ड्री बिजनेसेस, ड्रॉप शिपमेंट बिजनेसेस और ट्रैवल बिजनेसेस, ऐसे तमाम बिजनेसेस पे हम लोग उनको इवॉल्व करेंगे। जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है रिंजो करके, लॉन्ड्री में। तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे किसी को लॉन्ड्री बिजनेस में खड़ा ना है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी कि उसको एक फ्रेंचाइजी फ़ी देनी होती थी 5 लाख रुपया। सो उसको एक एप्लीकेशन के लिए करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करना होता है, और उसको है ना मॉनेटरी के तौर पे उसको फंड शेयर करना पड़ता है प्रॉफिट्स। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से तो हम लोगों ने हमारे प्रेसिडेंट साहब के हिदायत से तो हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रांड ही हमने बना दिया हमारे कम्युनिटी के लिए। तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ये ताउम्र ये ब्रांड हमारे कम्युनिटी के लिए अवेलेबल रहेगा और वो लोग अब बिना फ्रेंचाइजी फ़ी, बिना कोई हमें प्रॉफिट देते हुए, और हम एज एसोसिएशन इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो आपकी मीडिया के ज़रिए से मैं हम तमाम वो यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप बनना की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो पैन कर्नाटका से आप लोग हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं और अपने आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी एक बहुत सारी टीम बनी हुई है फिलॉन्थ्रोपिकली, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप हब्स में ये सब पूरे तैयार हैं। आप अपने आइडिया या जो भी आपकी प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योरशिप में है लेके आए। अगर आपको कोई ये है कि भाई हम लोग मेंटली नहीं रेडी हैं, तो उनको मेंटली भी हम लोग रेडी करेंगे इंशाल्लाह। आप अपने एक जहन बना के आए और इंशाल्लाह हम लोग सब करेंगे। जो हमारे अब्दुल रशीद साहब जो पिछले जो फाउंडर मेंबर है, तो वो इस साल और 28, 26, 27, 28 तक प्रेजेंट रहेंगे। तो मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करूँगा। तो मेरा नाम जो है मोहम्मद ताहिर शरीफ है और हमारे साथ जुड़े हैं हफीज़ भाई मीर अब्दुल हफीज़, वो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और उनको साथ देने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अजमतुल्ला, और उसके साथ ट्रेजरर हैं हिदायतुल्ला, और उनके जॉइंट ट्रेजरर हमारे मुनीर अहमद साहब। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी स्ट्रांग टीम है और हमारे 20 काउंसिल मेंबर्स के साथ हम इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और ठीक है। Assalamu alaikum. My name is Riza Fatima and this is Fatima Talha and Sana Ahmed. So we are the elected council members of MIA for this term 2026 to 28, and MIA में women's vertical 6 is women's wing, which is Association of Women Entrepreneurs, and we work on empowering women and developing entrepreneurship among women in our community. So हमारा काम जो है to encourage women to come into entrepreneurship, and जो existing business है उनको uplift करना, उनको guide करना, उनको trainings दे के आगे बढ़ाना, यही हमारा काम है। and 2019 से हम लोग ये vertical चला रहे हैं, and अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ के थोड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। So बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं हम लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग सेशंस अरेंज करते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे मेंबर्स को या इवन नॉन मेंबर्स जो विमेन होते हैं उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उनका, तो वो हम अरेंज करके उनको देते हैं, और एग्जिस्टिंग मेंबर्स को हैंड होल्डिंग करते हैं। तो उनको जो भी दिक्कत आती है बिजनेस में, वो उसमें जो तरीके से हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं वो करते हैं हम लोग। एंड छोटे मोटे इन अ स्मॉल वे वॉट एवर मॉनेटरी हेल्प एसोसिएशन से करवा सकते हैं वो करवा के देते हैं। सो दिस इज व्हाट। ओवरऑल कितने कर्नाटक से या होते बेंगलुरु से कितने लोग, कितने वुमेन्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे पास एज ऑफ नो 107 मेंबर्स हैं, विमेन मेंबर्स, लेकिन सारे बेंगलोर से नहीं है। उसमें से थोड़े 2-3 दुबई से हैं, थोड़े चेन्नई से हैं, थोड़े एक मेंबर आमूर की है। सो इट्स स्पेस्ड आउट। सो यही चीज़ के लिए हमने अभी रिसेंटली 3 मंथ्स बैक एक प्रोग्राम किया था। दैट इज़ एक सब्जेक्ट है जो घर पे कर सकते हैं, विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड आइडिएशन स्टेज से। वो हमने हमारे वर्टिकल 2 के हेड जो है शुएब वाला है, उनका मेन बिजनेस तो यही है। सो इसमें हमने ट्रेन किया था उनको, सो दैट दे कैन वर्क फ्रॉम होम। उनको घर से अगर काम कर सकते हैं, और उनको काम दे भी सकते हैं हम लोग, हमारे मेंबर्स खुद उनको काम दे सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं जो उनको काम दे सकते हैं। तो उसमें तो यस, हमसे हमारा नंबर हम दे सकते हैं एंड दे कैन गेट इन टच विद अस। कभी भी हम उसमें हेल्प कर लेंगे। सो ऐसे सेशंस हम लोग कंडक्ट करते ही रहते हैं। स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सेशंस हम लोग करते हैं, क्योंकि दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है या आगे कुछ करना भी चाह रहे हैं, तो अपने खुद के बिजनेस के लिए भी चाहिए और एज अ करियर ऑप्शन ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हम लोग ये सेशन सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये दे कैन गेट इन टच विद अस। थैंक यू। मेरा नाम शोएब है और मैं MIA के वर्टिकल 2 विच इज़ इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन जो वर्टिकल है उसका सदर हूँ, हेड हूँ। तो ये हमारे वर्टिकल में जो है हम 5 काम करते हैं।
फर्स्ट काम क्या करते हैं हम जो है ग्रेजुएट्स बच्चे जो हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि अभी AI टूल्स आ गया है, उसका ट्रेनिंग फ्री में देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का फ्री देते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ों जो का ट्रेनिंग जो है फिलहाल हम फ्री में देते हैं MIA से। सेकेंड काम जो है, जो अभी जो गवर्नमेंट क्या किया है, हर बच्चा जो फाइनल ईयर पढ़ रहा है उसको इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया है, और हमारे बच्चे हर एक कंपनी में जाके उनको मिलता है ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो हमारे जो 700 मेंबर में है उसमें से कई मेंबर से हमने क्या किया है, बात कर लिया है कि हम आपको बच्चे देंगे करके। तो जैसे भी कोई भी कॉलेज का बच्चा इंटर्नशिप करना चाहता है, हमारे पास MIA में जब आएंगे तो हम उनको क्या करते हैं, उनके पढ़ाई के मुताबिक, उनके जो फील्ड के मुताबिक जो इंटर्नशिप है वो मेंबर के फैक्ट्रीज को या उनके ऑफिसर्स को हम उनको डिप्लॉय करते हैं। ये सेकेंड काम है। थर्ड जो है, कई कॉलेजेस में जो है बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए इंडस्ट्रीज को लेके जाना है। अभी नॉर्मली बच्चे टूर पे चले जाते हैं इंडस्ट्री विजिट के नाम पे, तो हम क्या करते हैं, हमारे मेंबर के फैक्ट्री, कई मेंबर है जो वॉच फैक्ट्री है जिनका, एक मेंबर है जिनका वंदे भारत बस का एक्सल का फैक्ट्री है, एक मेंबर है जिनका ATM का बनाने का फैक्ट्री है। ऐसे मेंबर्स ऑलरेडी हमने बात करके उनसे परमिशन लेके रखा है। जो भी इंस्टीट्यूशन हमको अप्रोच करेंगे तो हम उनके बच्चों को हमारे मेंबर के फैक्ट्री में एक दिन का इंडस्ट्रियल विजिट, जहां पे कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह उनको रियल टाइम में समझाया जाएगा। ये है। और फोर्थ हमारा काम क्या है बोलते, जॉब ड्राइव करते हैं हम। जैसे कि मनु पॉलिटेक्निक हो गया, गौसिया कॉलेज हो गया, जो भी बच्चे हमारे रीच करते हैं हम उनको हमारे मेंबर्स फैक्ट्री में जॉब भी दिलाते हैं। और लास्ट जो है, हमारे बच्चों के अंदर बात करने की सलाहियत सब कुछ आने के लिए हम जो है सेमिनार्स, इनोवेशन कॉन्फ्रेंसेस जो है ये ऑर्गेनाइज, ये 5 काम जो है इस वर्टिकल टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ जो है हम अगले 2 साल के लिए, मैं वर्टिकल हेड हूँ और लास्ट ईयर भी हमने किया और इस साल भी इंशाल्लाह करेंगे। आपको इसमें से कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है 8088802000। मेरा नाम है शोएब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना अहमद है। मैं MIA मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में 6th वर्टिकल AWE ऑफ एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की वर्टिकल हेड हूँ। हमारे एसोसिएशन में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दे के एनकरेज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे मुसलमान औरतों को बिज़नेस करने के लिए एक परमिशन मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। जब परमिशन मिल जाता है तो उनको ये नहीं मालूम रहता कि वो बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट हो जाता है उनके बिजनेसेस को 1 साल 2 साल रन करने के बाद में उसको कैसे ग्रो करना नहीं मालूम होने की वजह से बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स उम्मीद छोड़ देते हैं और घरेलू बिजनेसेस करके बैठ जाते हैं। जैसे कि कपड़े बेचना, टेलरिंग करना, जो अपनी हिम्मत से अपने सोर्सेस से कर सकते हैं, बस इसी में लिमिटेड हो जाते हैं। जो ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं उनको लिमिटेशन आ जाते हैं, पर्दे के वजह से हो या फिर सोर्सेस ना होने के वजह से हो या फिर फैमिली सपोर्ट ना होने के वजह से हो, तो उनको बैकलैश होकर स्टॉप हो जाते हैं, उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलता। तो मोस्टली हमारे एसोसिएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, समझते हैं कि उनको तकलीफ किस चीज़ में हो रही है बिज़नेस में। अगर उनको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे वुमेन्स हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो वी ट्राई टू पुश देम बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाने की, विजिबिलिटी दिलाने की। अगर कोई ऐसे औरतें हैं जो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, जिनको हिम्मत नहीं होती खड़ के अपना बिजनेस प्रमोट करने को, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि अपने 30 सेकेंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर अपना बिजनेस कैसे वो प्रमोट करें। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम तकलीफ़ को उनकी समझ के उसको रेक्टिफाई करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर महीना हम कोशिश करते हैं कि एक ट्रेनिंग तो दे सके, बट हमारा भी टाइट शेड्यूल होने की वजह से 2 महीने में एक तो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम देते ही देते हैं, जहाँ पे वो पब्लिक इमेज सीख सके या फिर कुछ एक्स्ट्रा आउटसोर्सेस ट्रेनर्स को लाके उनको ट्रेनिंग देते हैं जो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सके। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हो जाए या फिर इंट्रोडक्शन हो जाए या फिर बाहर सबमिट्स में जाना हो या फिर फ्लेयर मार्केट्स करना हो, मीट एंड ग्रीट्स होते हैं जहाँ पे सब लोग मिलते हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो ऐसे करके हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ इस एसोसिएशन में करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये बात सारे उन औरतों को पहुँचे जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो घर से कर रही हो या फिर हायर लेवल पे कर रही हो। हमारे पास बेकर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक भी
वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे एसोसिएशन में है, तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ आवर एसोसिएशन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शकील अदीब है। मैं MIA का 24 to 26 2 साल का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल में हमने काफ़ी मेहनत करके MIA को आगे बढ़ाया है। हमने 150 मेंबर ऐड किए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने प्रॉपर्टी भी हमने जब ऑफिस लिया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो हमने एक प्रॉपर्टी MIA के बाद से लेने के लिए हमने वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एग्रीमेंट बनाया है, एक 40-60 प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई करके इंशाल्लाह इसमें उसको ख़रीद के इंशाल्लाह उसमें हमारे ऑफिस की एक अच्छी तरह से एक ऑफिस बनाने की कोशिश है हमारी। उसके अलावा भी हमने जो भी ये 2 साल में हमने हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ उसमें एक एंटरप्रेन्योर हब बनाया है। तो वो और भी हमें ये आने वाले जो काउंसिल के लिए दरख्वास्त ये गुजारिश करता हूँ को इसको और भी अच्छा सा आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह खैर। जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये बैंगलोर में ही या आउट ऑफ? ये बेंगलोर यहाँ से एक 400 मीटर दूर है। 40-60 प्रॉपर्टी है, वो BDA की प्रॉपर्टी है। उस जगह पे क्या क्या काम होंगे? तो इसके तो उसको हाफिज साहब हमारे जो इनकमिंग सेक्रेटरी हैं वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। Thank you for watching. If you like this video, please like, share, and subscribe to KM News Digital.